Hello, my dear students. Once again, I am here for explaining a new chapter from Class 4 NCERT textbook of English. And today we'll discuss our chapter number 2. And the title of our chapter is The Little Fruit Tree. So, इस चैप्टर में हम देखेंगे एक ट्री के बारे में एंड क्या होता है दैट वी विल डिस्कस. So, in the beginning of our chapter, one magician whose name was Seti. Seti the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. It rained heavily. Seti looked around for shelter and saw a pretty little fig tree. He ran towards it as fast as he could. So, as I told you, one magician whose name was Seti was returning from his work. जो भी उसका मैजिक शो होगा वो खत्म करके वो अपने घर पे वापस जा रहा था. एंड व्हेन सडनली इट वाज रेनिंग, जैसे हमारे यहाँ बारिश हो रही है वैसे ही यहाँ पे भी बारिश हो रही थी. सो इन द रेनी सीजन नाउ सेटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर. वो भीग ना जाए इसीलिए उसने क्या सोचा कि लाओ कहीं पे जाके खड़ा रहता हूँ. सो ही फाइंड शेल्टर. शेल्टर मीन्स एक जगह जहाँ पे वो बारिश से बच सकता है. So he find a shelter and saw a pretty little fig tree. He ran towards it as fast as he could. और उसने एक बहुत अच्छा लिटिल fig tree देखा. यहाँ पे देखो आप, बहुत अच्छा दिख रहा है. He is smiling also and magician is there. और वो जल्दी से वहां से भागते हुए गया and he just stand under the tree. और पेड़ के नीचे खड़ा हो गया. Soon the rain stopped. और थोड़ी ही देर में रेन बंद हो गई. Seti was happy that he did not get wet. So Seti, the magician, was very happy. Why he was happy? Because he did not get wet. क्योंकि वो भीगा नहीं. और किसकी वजह से भीगा नहीं? Because of the fig tree. A little fig tree की वजह से वो बारिश में भीगा नहीं. Thank you. You have been kind to me. I would like to reward you. Ask for 4 wishes and I will grant them, said the magician. So magician है ये तो. अब सेटी वो was magician, एक जादूगर है. तो उसने क्या बोला कि भाई because of you I did not get wet, कि मैं भीगा नहीं बारिश में. So thank you very much. You are very kind to me. तुमने मेरे साथ अच्छा बिहेव किया. You saved me from wetting off into this season. So now I will grant you 4 wishes. मैं तुम्हें 4 wishes देता हूँ. You may ask, तुम्हें जो भी चाहिए I will definitely give you as a reward. As a reward I will give you. So now क्या मांगेगा ये फिग ट्री? अगर कोई इंसान है, हमारे पास क्या है, जीनी है. So जीनी में क्या होता है कि हम लोग अपनी विश मांगते हैं and genie will complete our wish. So here also for tree. So the sad fig tree had leaves like needles and no birds ever made their nest on it. So it said, I wish I had green leaves like my other friends. So fig tree है. अभी हम सब जानते हैं कि fig tree होता है, उसके जो leaves होते हैं, पौधे होते हैं, वो कैसे होते हैं? It's like a needle. और because of that no birds ever made their nest on it. और उसी की वजह से कोई भी बर्ड्स अपना नेस्ट, अपना घर उसके ऊपर बनाता नहीं था. एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस ट्री वॉज सैड. सो उसने बोला कि आई विश आई हैड अ ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स. सो उसने पहली विश मांगी कि मेरा जो पौधे वो मेरे अदर फ्रेंड्स, जो सराउंडिंग जो ट्रीज थे उसके जैसे हो, वेरी कॉमन एंड ग्रीन लीव्स. सो नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड. So by the next morning उसकी विश ग्रांट कर ली मैजिशियन ने. And soon a goat came along and ate all the green leaves. Oh dear, said the fig tree, I wish I had gold leaves as goats do not eat gold leaves. So दूसरे दिन क्या हुआ? गोट्स आई वहां पे और सभी के सभी ग्रीन लीव्स थी वो खा गई. Why खा गई? Why? It eaten up all the these green leaves because goats like the fresh green leaves.
उनको ग्रीन लीव्स पसंद थी तो वो खा गए। एंड अगेन आवर फिग ट्री वाज सैड, दूसरी बार वो सैड हो गया, दुखी हो गया और उसने दूसरी विश मांगी। कौन सी विश थी दूसरी विश कौन सी थी? ओ डियर said the fig tree, I wish I had a gold leaves as goats do not eat gold leaves. कि म्यूजिशियन सेटी प्लीज ग्रांट मी अ गोल्डन लीव्स। देखो सुनहरे पत्ते, अभी सुनहरे पत्ते तो क्या होगा? डेफिनेटली समवन स्टेल इट, कोई चुरा के ले जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता था, फिग ट्री डिडंट नो अबाउट इट, उसे वो फैक्ट नहीं मालूम था। उसे तो इतना ही पता था कि अगर गोल्डन लीव्स होगी तो ये जो गोट्स है वो कभी भी उसे खाएगी नहीं। देन व्हेन द लिटिल ट्री woke up the next morning, it was surprised to see the gold leaves. How happy I am, it said. और दूसरे दिन उसने देखा तो पूरे के पूरे उसके सभी लीव्स थे, it was golden. And finally he said, how happy I am, मैं कितना खुश हूँ, मेरे पास गोल्डन लीव्स है, and no one can eat it, और कोई भी इसे खा नहीं सकता है। But a man came along and stole the golden leaves. और gold leaves एक इंसान आया और चुरा के ले गया। अब देखो यहाँ पे ये दूसरा ट्री यहाँ पे देख रहा है, हरियर इन दिस पिक्चर, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता है। आफ्टर ऑल इट्स अ ट्री एंड द टू men looted all the and stole all the gold leaves from the fig tree. अगर सोने का ट्री है तो आफ्टर ऑल रॉबर्स तो आएंगे ही, डेफिनेटली इट इज देयर, सोने की चीज होगी तो कोई भी चुरा ले जाएगा। और यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। एंड फाइनली उसने अपनी थर्ड विश he want from the magician that I wish I had glass leaves instead. Men do not steal glass leaves. कि भाई मुझे ग्लास के लीव्स दे दो, ग्लास यानी कांच के। So no man will steal glass leaves, यानी कोई भी ये ग्लास के लीव्स चुरा के ले जाएगा नहीं। No one dare to, क्योंकि कांच तो ले जाएगा तो आगे किसी को लग भी सकता है, बराबर है। सो नो वन विल ट्राई टू स्टेल दिस। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शोन इन द ब्राइट सन, हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। सो दूसरे दिन इन द वेरी ब्राइट सनी डे उसके जो ग्लास के लीव्स थे वो चमकने लगे। इट्स शाइनिंग बिकॉज ऑफ सनलाइट की वजह से वो चमकने लगे। और वो फिर से बोला कि हाउ हैप्पी आई एम, मैं कितना खुश हूँ। एट नाइट द विंड ब्लू ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। इतनी जोर से पवन आई कि सभी ग्लास के लीव्स क्या हो गए? टूट गए। इट वॉज टोटली ब्रोकन। एंड देखो फाइनली उसका हाल कैसा हो गया। दूसरे जो पेड़ थे उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो बेचारा फिग ट्री था उसके जो ग्लास लीव्स थे वो यहाँ पे टूट के जमीन पे गिर गए। ओ डियर सेड द फिग ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गोट्स डू नॉट ईट देम, नो मैन कैन स्टील देम, द विंड विल डू देम नो हार्म। सो फाइनली उसने 3 विश मांग ली थी ऑलरेडी, एंड द मैजिशियन सेटी already granted its 3 wishes. So last wish क्या थी कि भाई वापस मुझे मेरे needle like leaves मुझे वापस दे दो, because it is the best for me. क्यों बेस्ट थे उसके लिए? because no goat can eat them, कोई गोट आएगी और उसे खाएगा नहीं। no man can steal them, कोई इंसान उसे चुराएगा नहीं। and after all finally the wind will do not harm them, कि भाई जो विंड आएगी वो भी उसे कुछ कर पाएगी नहीं। एंड फाइनली द ट्री वेंट टू स्लीप। व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट हैड ऑल इट्स नीडल बैक अगेन। दूसरे दिन हुआ मॉर्निंग एंड द फिग ट्री वेरी हैप्पी बिकॉज उसके जो नीडल लाइक ट्री, नीडल्स लाइक लीव्स जो पन्ने थे वो वापस आ गए थे। एंड हियर ऑल्सो देखो आप पीछे वाला ट्री भी हंस रहा है, वो पहले दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि इसके साथ ये बुरी चीजें हो रही थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट द अदर ट्रीज आर ऑल्सो वेरी सैड। बट हमारा ये जो फिग ट्री है फाइनली एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो वापस खुश हो गया, क्योंकि उसे अपने जो नीडल लाइक लीव्स थे वो वापस मिल गए। ओह आई नेवर वाज सो हैप्पी सेड द लिटिल फिग ट्री, कि भाई
मैं इतना खुश कभी भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ही डोंट नो द वैल्यू ऑफ इट्स नीडल लाइक लीव्स, कि भी उसके जो नीडल लाइक लीव्स थे उसकी वैल्यू उसे कब पता चली? जब उसके साथ 3 times रॉन्ग इंसिडेंट हैपन, 3 बार बुरी चीजें हुई, तभी उसे पता चला कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स नीडल लाइक लीव्स। एंड फाइनली वो एट द एंड ऑफ द स्टोरी द लिटिल फ्रूट ट्री वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गया। सो इस लेसन में से हमें सीखना मिलता है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यू जस्ट वॉट एवर यू हैव जस्ट एंजॉयड इट, बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, कंटेंटेड इन योर लाइफ। आप आपकी लाइफ में खुश रहो, जो भी आपको मिला है, वॉट एवर गिवन बाई योर पेरेंट्स, गिवन बाई गॉड, वॉट एवर यू हैव, जस्ट बी हैप्पी विथ योर फैमिली, लिव हैप्पीली एंड लिव सेटिस्फैक्टरली लाइफ। सो यू एंजॉय दिस काइंड ऑफ हैप्पीनेस, जो अभी ये फिग ट्री एंजॉय कर रहा है वैसे, बराबर है। नाउ न्यू वर्ड्स इज देयर, प्रीटी यानी ब्यूटीफुल, नीडल्स मीन्स इट्स लाइक अ शार्प नीडल, लीव्स यानी पौधे, गोल्ड दैट यू हैव ऑलरेडी अबाउट इट, एंड स्टोल यानी चोरी करना। सो दिस इज आवर poem. Here reading is fun, so teach the correct answer. So MCQ type question is there. So the pretty little fig tree was happy with gold leaves, but उसका साथ ऐसा क्या हुआ कि gold leaves के साथ happy था, लेकिन क्या हुआ था? That you have to write, that you have to tick here. The fig tree was sad, वो दुखी क्यों था? Here 3 options given by the author, that you have to write or tick. And last one is that the fig tree was not happy with the gold leaves, क्यों happy नहीं था? That you have to tick here. Now word building is there, means by changing the circle word to its opposite, rewrite these sentences, one has been done for you. यानी ये जो सर्कल किए उसके आपको ऑपोजिट लिखने हैं, रिमेनिंग ऑफ द सेंटेंस आर द सेम। फॉर एग्जाम्पल, आई कैरी अ लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे। सो हमने क्या चेंज करना है? आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। दूसरा है रीना वॉन्ट द रेस, तो वन का ऑपोजिट वी हैव टू राइट हियर। आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, सो लव का ऑपोजिट यू हैव टू राइट हियर। एंड फॉर ऑपोजिट यू शुड यूज रिसोर्सेज लाइक डिक्शनरी, Google or any internet, so you can get the answer. This glass of milk is full, so you have to mention or you have to write the opposite of full. And the old man is wise, so wise का opposite आपको यहाँ पे लिखना है, और remaining of the sentence are the same. Now give the opposite of the words below by adding un or im. So पहला एक example I will give you, then happy, so उसका opposite क्या होगा? Unhappy. Important, so unimportant. So these are the example I have given to you. Remaining of the exercise you have to do on yourself using dictionary or anything. Now here one story is there. Rita loved her dog Shiro. Every day Shiro would go out of the house and come back himself, but one day he did not come home. Rita looked everywhere for him. Tears rolled down her cheeks. Shiro was lost. He was nowhere to be found. Rita was crying when she reached home. She got into her bed. All of a sudden something jumped on her. Can you guess who it was? Rita was happy. So now give the opposite of the words in blue. So इन सभी blue वाले words है उसके भी हमें opposite लिख के यहाँ पे हमारी एक्टिविटी और एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. सो वेरी सिंपल एंड इजी, एंड रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग द कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी. यानी जहां पे भी कैपिटल लेटर्स हमें जरूरी है, दैट वी हैव टू रीराइट दिस एक्सरसाइज. सो आई होप दैट यू गॉट दिस चैप्टर, you understood this chapter and also the exercise of this chapter. So be like a fig tree, हमेशा fig tree की जैसे रहो, live happily. उसे जैसे at the end of the poem उसे जैसे पता चला कि भाई what is the importance of the things we have, हमारे पास जो है उसका कितना importance है, at the end of the chapter he knows about it. So हमें भी हमारे पास जो भी है उसके साथ we have to just live happily.